Good morning, everyone. In the last classes, in fact, two classes, we were discussing about conditional probability, and those classes were held offline. Next, we are talking about the concept of independent event. And after this subtopic, probably we will start with the revision work. It all depends how many of you are actually working for term one and you are encountering the doubts. So I'll be taking the revision part. But at least before that, I would prefer to complete this one subtopic because it is related to your conditional probability only. So, in the case of conditional probability, as we did talk about conditional probability, so there was a restriction. Some condition was imposed when we said P of A by B. So, probability of A was calculated and B event has already occurred. So, what is the implication? What is the impact of happening of that event B? But now, when we are using the term independent event, as the name suggests, events are independent, means happening of one event doesn't affect the other event. So, happening or non happening of one event hardly matters and it has no effect on the other event. And both of the events are from the same sample space. So let's move ahead. And before I talk about independent event formula, there is a term, or in fact, a rule, multiplication theorem on probability. Name may seem to be quite new to you, but when I talk about the question, you will find you already did the same concept in grade 11th itself. So, what exactly is your multiplication theorem? Let A and B be two events associated with the same sample space. Then P of A intersection B. P of A intersection B. Even if we write P of AB, so this is a notation and it represents the intersection only. The P of A intersection B is P of A into P of B by A. So A की probability into B की probability आ रही है. Just that second term में क्या हो रहा है? Because A has already occurred, तो उसका impact क्या पड़ेगा on getting the probability of event B? So this is the formula you need to understand. And in fact, there is no need to learn this also because when I talk about one question, आपको realize हो जाएगा. This is very easy to apply actually. Even अगर मान लीजिए आपके पास तीन इवेंट्स होते A, B and C, the idea is extendable. किस तरह से? It is actually पहले P of A चलो मैंने निकाल दिया, फिर B की प्रोबेबिलिटी A का इंपैक्ट क्या है, फिर इंटू C की प्रोबेबिलिटी और A एंड B का मिलकर क्या इंपैक्ट पड़ा ऑन हैपनिंग एंड ऑन A एंड B. So that way we calculate probability of A intersection B intersection C. Quick question, बहुत easy है. Without even knowing that से multiplication theorem लगा रहे हैं, you all can solve this question. Please check this out. An urn contains 8 white balls and 4 red balls. 2 balls are drawn at random from the urn. Urn माने कोई भी एक बॉक्स हो गया जैसे. One after the other without replacement. So this is very important for us to understand. Without replacement versus with replacement. Without का मतलब क्या हो गया? एक बॉल जो आपकी निकल कर आई उसे साइड में रख दिया, दोबारा से मिक्स नहीं किया है. तो क्या पूछा है? What is the probability that both drawn balls are white? तो थिंक लॉजिकली क्या होगा ये? प्रोबेबिलिटी पहली बॉल व्हाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? एनीवन?
व्हाइट बॉल आने की क्या है प्रोबेबिलिटी इस केस में, फर्स्ट व्हाइट बॉल की? 8 व्हाइट बॉल्स हैं, टोटल 12 बॉल्स थी, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 8/12। अब दो बॉल्स को ड्रॉ करा गया है इनटू, अब दूसरी बॉल भी वाइट है, तो अब लॉजिकली सोचिए, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था, एक तो मेरी एक वाइट बॉल कम हो गई और ओवरऑल एक और बॉल कम हो चुकी है, तो इसके होने का इंपैक्ट पड़ गया दूसरे वाले केस पर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो पहली वाइट बॉल एंड इनटू दूसरी वाइट बॉल, और अपने आप आइडिया विद प्रैक्टिस लग जाना चाहिए कि वाई देर इज अ मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड क्यों नहीं कर। यहां ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, पहली भी वाइट आए एंड दूसरी वाइट आए, और जब भी हम एक लैंग्वेज में या कॉम्प्रिहेंशन करते हैं एंड, तो इट इंप्लाइज मल्टीप्लीकेशन। सेम क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं, और अगर मैं लिख देता हूं विद रिप्लेसमेंट, बाकी सब कुछ सेम है, तो विद रिप्लेसमेंट के केस में पहली बॉल वाइट आई 8/12। अब बॉल दोबारा से ये वाली मिक्स कर दी है थॉरोली, तो ये बॉल दोबारा से रिपीट हो सकती है, तो सेकंड बॉल फिर से वाइट आने का प्रोबेबिलिटी इज 8/12। तो दैट इज ओनली इम्पैक्ट, और ये भी 8/12, तो 8/12 इंटू 8/12, दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। वंस द आइडिया इज क्लियर, अब मैं अगर इस केस में ये कह देता 3 बॉल्स को ड्रॉ करा गया था, 3 बॉल्स विद रिप्लेस, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट, 8/12, 7/11, 6/10, एक एक बॉल कम होती रहेगी। And if it is a case of without replacement, recall, you can always think of applying combinations. So permutation combination of grade 11th is important, उसकी एप्लीकेशन यहां आपको आनी चाहिए। सो अगर मैं ऊपर वाले केस में बात करूं, यूजिंग द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, 8 में से कोई भी दो व्हाइट बॉल आ जाए, हम यही चाहते हैं ना कि बोथ बॉल्स आर वाइट, 8 में से कोई भी दो व्हाइट बॉल आ जाए, और टोटल कितनी थी 12 बॉल, तो 12 में से कोई भी 2 आ जाए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यू कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑल्सो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये आंसर सेम आएगा। विद रिप्लेसमेंट में आई कैन नॉट अप्लाई कॉम्बिनेशन, वहां आपको बिल्कुल ऐसे ही सोचना होता है। चेक आउट दिस क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेस्ड ही है, वो आप आइडेंटिफाई कीजिए। 3 cards are drawn successfully without replacement from a pack of 52 well shuffled deck cards. What is the probability that first 2 cards are queen and third card is king? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, फिर क्वीन आए और फिर किंग आए, कुछ ऐसा पूछा गया है। वेरी सिंपल सिचुएशन, फर्स्ट क्वीन, क्वीन होती हैं 4, सेकंड क्वीन विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक क्वीन कम हो गई, एक कार्ड कम हो गया, ये तो क्वीन एंड क्वीन का केस आ गया। अब किंग, फिर सोचिए, किंग तो 4 ऑल प्रेजेंट है, जस्ट दैट एक कार्ड तो कम हो गया है,
दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हार्डली मैटर अब क्वेश्चन मेरा 3 लाइनों में लिखा हुआ आया है, बट इफ द कंसेप्ट इज क्लियर, सिंगल लाइन में आंसर है। व्हेन यू सॉल्व इट यू कैन मैच, दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। रिमेंबर योर टर्म 2 इज नॉट गोइंग टू बी एमसीक्यू, तो उसमें यू नीड टू सॉल्व, सिंप्लीफाई द होल क्वेश्चन। सो रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो होमवर्क मैंने जो बाद में लास्ट में मेंशन किया, आई शो इट, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जहां इस तरह के सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करके वी लिंक दिस विद इंडिपेंडेंट इवेंट्स। So now what do we mean by independent events? As already mentioned, the event happening or non happening of one doesn't affect the other. So two events are said to be independent if P of A by B becomes only P of A. क्योंकि हमने कह दिया कि दे आर इंडिपेंडेंट, तो A की प्रोबेबिलिटी पे B का क्या इफेक्ट होगा? कंडीशनल का मतलब तो ये होता है पहली वाली नोटेशन का, बट क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं तो ए के ऊपर बी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो दिस इज ओनली पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए बाय बी, और अब इंडिपेंडेंट है तो बी का कोई इंपैक्ट है ही नहीं ए के ऊपर, इट इज जस्ट पी ऑफ ए। सेम वे यू कैन कंसिडर दिस। सो आप चेक कीजिए, ये इसमें देखो क्या एक्सप्लेन किया गया है। एक तो ये मुझे रूल मिल चुका है, P ऑफ A बाई बी इज P ऑफ A। ऑल्सो थिंक लॉजिकली, P ऑफ A बाई बी का फॉर्मूला हमने किया था P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B। P ऑफ A बाई B क्या हो गया? P ऑफ A, अगर A एंड B आर इंडिपेंडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड प्रॉपर वे में लिखूं तो ये आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P of A into P of B. So this is the final conclusion, and in fact the condition to check whether my two given events are independent or not. So everyone, please write down in chat box your attendance. Only Y is sufficient P present के लिए। एंड लविश, आपका वाइवा अभी तक पेंडिंग है, इतना मैंने मैसेजेस दे दीजिए, यू दे दिए हैं, यू आर नॉट कॉन्टेक्टिंग। एंड आई थिंक प्रकृति का भी रहा था, बट नो कांटेक्ट अलग से के कोई एक बार भी पूछ लें। सो फाइनल कंक्लूजन, two events A and B are said to be independent if P of A intersection B is P of A into P of B, और डिपेंडेंट कब होंगे? जब ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्वाइट ऑब्वियस। थ्री इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे? दो वी डोंट रिक्वायर जनरली दिस रूल, बट वन शुड बी अवेयर ऑफ इट। तीन इवेंट्स की जब हम बात करेंगे तो एक तो ये कि आपस में ए एंड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बी एंड सी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ए एंड सी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम all three must be also independent। तो अगर ये चारों कंडीशन ट्रू होती हैं, then only we say that the events A, B and C are independent। there is one solved example in NCERT book, वो आप चेक कर लेंगे, जिसमें ये कंडीशन को चेक करके बताया है when three events were defined।
So let's begin with a simple question to start with. Let E1 and E2 are two independent events. जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि ये इंडिपेंडेंट हैं, P of E1 by E2 एक्चुअल में मुझे क्या गिवन है? P of E1 into P of E2 गिवन हो गया ये, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थे. अब हम देखते हैं क्या क्या गिवन है. P of E1 मुझे पता है, P of E1 यूनियन E2 मुझे पता है 0.6. Find P of E2. Now let's start with P of E1 union E2. इसका फॉर्मूला 11th में किया हुआ है. P of E1 plus P of E2 minus P of E1 intersection E2, और this formula becomes third term क्या हो जाएगी? P of E1 into P of E2. Substitute the values whichever are given to me. P of E1 union E2 ये रहा 0.6. P of E1 मुझे पता है, P of E2. To calculate, it's a simple linear equation. Solve it, you will get your required answer. Any doubt to anyone? A die is thrown. सिंगल डाई की बात हुई है. सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6. ई एक इवेंट क्या डिफाइन करा है? नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो ई क्या हो गया? 3 and 6. एफ क्या डिफाइन कर दिया है? नंबर अपियरिंग इज इवन 2 4 6. फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट. तो एक तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लो. क्लियरली 6 आ गया. नाउ व्हाट इज P of E? P of F, P of E intersection F. P of E, 2 cases out of 6 possible cases. F में 3 cases out of 6. This is 1 case out of 6. आप P of E इंटू P of F कर लीजिए. आप लोएस्ट फॉर्म में चलो वहीं कर लेते, एक ही बात है. तो ये कितना आ गया? 1/3 इंटू 1/2 1/6. and this is equal to P of E intersection F. ये कंडीशन ट्रू हो गई. इसका मतलब E F आर इंडिपेंडेंट. So that's the basic condition. You just need to cross check कि ये true है या false. Accordingly, I can decide कि independent होंगे event या नहीं. Now, there is a very important result. NCERT में as an example दे दिया है, but ये बोर्ड में रूल की तरह, फॉर्मूला और थ्योरम की तरह पूछा भी गया है, और एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी. प्रूव दैट इफ E and F are independent, then so is E and F dash. F dash का मतलब not F. तो आपको गिवन क्या है? E and F are independent. इससे क्या मुझे पता चल गया? P of E intersection F is actually P of E into P of F. By definition,
टू प्रूव क्या करना है? E and F dash are also independent. That is, ये कब इंडिपेंडेंट होंगे? When I am able to justify this result. अगर मैंने ये शो कर दिया कि this is equal to this, we have E and F dash then independent. तो चेक करिए, कंसीडर LHS. 11th में एक फॉर्मूला करा हुआ है, this is P of E minus P of E intersection F. This is most important here to understand. मैं फॉर्मूला याद दिलवा देता हूं, किस फॉर्म में था? P of A इंटरसेक्शन B डैश कहो, और इवन P of A माइनस B, दोनों का मतलब सेम था, और ये इक्वल था P of E A minus P of A intersection B. So that's the formula we did in class 11th. From equation 1, P of E intersection F को मैं लिख सकता हूं इसे P of E into P of F, दोनों में से P of E कॉमन, 1 माइनस P of F, एंड 1 माइनस P of F क्या हो गया? P of F डैश. यही तो मुझे जस्टिफाई करना था. तो अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया, दिस इंप्लाई E and F dash are independent. Learn this as a standard rule. Any doubt, any step which is not clear? In fact, सिर्फ E and F dash ही इंडिपेंडेंट नहीं ही होंगे. ऐसे केस में हम ये तो जस्टिफाई कर चुके हैं कि E and F dash होगा इंडिपेंडेंट. E dash and F, लॉजिकली सोचिए, फिर ये भी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, एंड E dash and F dash, वो दोनों भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. तो ऑल सच rules will follow if initially E and F are independent event. So try to, in fact try नहीं करना ही है, होमवर्क में आप इस वाले का प्रूफ करके देखिए. A and B both shall not prove this now. ये आप अपने आप ट्राई कर रहे हैं in your homework. Let's consider a few questions, और in fact अब 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट का तो आंसर देखते ही है. P of A गिवन है, P of B गिवन है. Find P of A intersection B if A and B are independent. So this value is actually by rule ये हो गया. Substitute their values and your required answer. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि ये पेपर में नहीं आ सकता. वी कैन एक्सपेक्ट इवन सच क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन. प्लीज आइडेंटिफाई which rule to be applied here. It's a multiplication theorem of probability. Two cards are drawn without replacement.
फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक। पहला ब्लैक हो, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अगला भी ब्लैक हो, एक ब्लैक कार्ड कम हो गया, एक कार्ड कम हो गया। योर रिक्वायर्ड आंसर। दूसरा वे इसे क्या सोचने का, 26 ब्लैक में से कोई, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसीलिए यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ कॉम्बिनेशन। ये आंसर और ये आंसर सेम है, बट ऑफ कोर्स दिस इज वेरी कैलकुलेटिव अननेसेसरली। तो लेट अस अंडरस्टैंड लॉजिकली एंड सिंगल स्टेप में आप आंसर लिख पाएंगे। अगेन सीम्स टू बी 4 लाइन का क्वेश्चन है, तो टफ होगा। सिंगल लाइन में आंसर है, प्लीज चेक दिस आउट। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. So let's always highlight the keywords. If all 3 oranges are good, the box is approved. Otherwise, it is rejected. So all 3 must be good for the approval. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which गुड क्वालिटी 12 है और बैड क्वालिटी 3 है, इट इज अप्रूव्ड फॉर द सेल। तो थिंक लॉजिकली, अप्रूवल के लिए पहला निकाल। एम आई ऑडिबल? और लाइट चली गई थी इसलिए कनेक्टिविटी चली गई। ओके ठीक है, सो लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन क्विकली। ओके, सो चेक दिस आउट। अब हम जब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो थिंक लॉजिकली। अप्रूवल कब है? व्हेन ऑल 3 आर गुड। पहला गुड आ जाए, आ गया 12/15, एंड सेकंड भी गुड आ जाए, बट याद रखो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तीसरा भी गुड आ जाए, योर रिक्वायर्ड आंसर, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। डायरेक्टली ये हो रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस रहे हैं, डाइस के या कॉइन के ऊपर बेस्ड। प्लीज डू अटेम्प्ट इन योर होमवर्क, बोथ आर सिंपल। चेक करना है कि वेदर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट।
Now this is important and logical question as well. Please check this out. Given the events A and B such that P of A is half, P of A union B is 3 by 5 and P of B is P. चलो P of A लिख लेते हैं half, P of B is P and P of A union B given है 3 by 5. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? फाइंड P if they are mutually exclusive. So recall this term. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या रहा था? A इंटरसेक्शन B इज 5. दे आर डिसजॉइंट, कुछ भी कॉमन नहीं है. और अगर ऐसा सिचुएशन हो गई तो दिस मीन्स सिंपली P ऑफ 5 दैट इज 0. तो अब हम जरा फार्मूला लिख दें. व्हाट इज P ऑफ A यूनियन B? PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है. पुट दी वैल्यूज. ये सब कुछ गिवन है. सॉल्व इट, योर आंसर. सेकेंड पार्ट में अब क्या डिफरेंस, क्या अलग चीज है? दे आर इंडिपेंडेंट. ए एंड बी इंडिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो गया P ऑफ A इंटू P ऑफ B. बस अब जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा आई कैन, ये फॉर्मूला है और इसमें थर्ड टर्म क्या हो गया? P ऑफ A इंटू P ऑफ B. सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज नाउ एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट. तो ये हो गया हाफ P और हाफ इंटू P. अगेन अ सिंपल लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व. So of course both are different situation, both are giving the different probability as answer. ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं. तो लेट मी टेक 9th, फिर आपका 10th होमवर्क में आ जाएगा. If A and B are two independent events, ओ सॉरी, वैसे आपको दिया है P A and B are two events. कहीं पर भी देखो इंडिपेंडेंट टर्म यूज नहीं हुई है. बट थिंक लॉजिकली. अगर मैं ध्यान से देखूं तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B 1/8 है, विच इज एक्चुअली P ऑफ A इंटरसेक्शन B. इसका मतलब A एंड B आर क्लियरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर. अब क्या निकालना है? नाउ टू फाइंड P ऑफ नॉट A एंड का मतलब याद करिए इंटरसेक्शन हो जाता है, एंड नॉट B. एनीवन? कैसे निकालेंगे? We used one result.
If A and B are independent, then A dash and B dash are also independent. तो क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब A dash B dash are also independent. और इनके इंडिपेंडेंट होने का मतलब आई कैन स्प्लिट दिस लाइक दिस. और P ऑफ नॉट A का मतलब P ऑफ A ये ऊपर गिवन था, ये आ गया. P ऑफ नॉट B का मतलब ये आ गया. Solve it, your required answer. सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया है. टेंथ इन योर होमवर्क. चले कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस. पहली बात, अगर 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस विल कंटेन 216 आउटकम्स. याद करिए, 1 डाई में 6 केसेस थे, 2 डाइस में 36, मतलब 6 स्क्वायर था, और 3 डाइस में 216 केसेस आ गए. अब उन्हें लिस्ट डाउन करना इज अ बिग चैलेंज, तो लॉजिकली करेंगे इस क्वेश्चन को. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. ये कह रहे हैं कि ऑड नंबर कम से कम एक आना चाहिए. डोंट यू थिंक सो? दिस इज सेम एज टू से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो ऑड नंबर. ये समझ आ गया, उसके बाद तो बहुत इजी है. एटलीस्ट 1 ऑड नंबर होना चाहिए, और इसका काउंटर पार्ट क्या है कि एक भी ऑड नंबर नहीं होना चाहिए. तो 1 माइनस पी ऑफ नो ऑड नंबर. अब ऑड नंबर नहीं है, क्या मतलब? पहला नंबर भी इवन होना चाहिए, दूसरा भी इवन, एंड तीसरा भी इवन, क्योंकि डाई को 3 बार टॉस करा गया था. और क्लियरली ये आपस में डाई में लिखेंगे नहीं, ऑब्वियस है ये इंडिपेंडेंट हैं आपस में. पहली बार डाई को मैं फेंकता हूं, उसमें इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता. चेक इट आउट, क्या हो गया ये फाइनली आंसर. इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 होती है ना. चलो पूरा लिख देता हूं. 3/6, फिर से इवन आ जाए, इंडिपेंडेंट है ये आपस में, और 1 माइनस 1/8 your required answer. So this question require a logic to understand. और अब होमवर्क आपको बता देता हूं. ट्राई आउट दिस क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इन योर होमवर्क. सिंपल लॉजिक है, बेसिक बेसिक आइडियाज को यूज किया है. सो यू कैन ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस. Any doubt to anyone? Please mark your attendance quickly and then you can leave the class. Excuse me, sir. Yes. Sir, I was having cold and cough on the other week, and that's why I was not able to come to school. Can you please tell me my mark? बेटा अभी बाद में पता, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है, मुझे एग्जिट करना है इस मीटिंग से.
ठीक है, Okay. बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लेना, राइट? Okay. Okay, sir. या Thank you. या ओके, वेलकम।